ناظرین السلام علیکم. ہر طرف جشن طرب ہے، آج روز عید ہے. رنگ عالم ہی عجب ہے، آج روز عید ہے. 14ویں انتظامیہ اور اسٹاف کی جانب سے ناظرین کو عید الفطر بہت بہت مبارک. اللہ تعالیٰ آپ کے قیام، آپ کے صیام، آپ کی عبادتوں اور زکوٰۃ کو قبول فرمائے. ماہ رمضان کے دوران جس طرح غزہ کے مظلوم عوام کو یاد کیا گیا اور ان کے لیے دعائیں کی گئیں، آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے. اب بڑھتے ہیں سرخیوں کی جانب. حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام. صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز. شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے. 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز. ہمارا سپریٹ بی بی کیو سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص. 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز. کیو میکس فارم ہاؤس آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ. کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ. ضیا انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ان کی ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسا انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامارن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو. 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ. کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد. آپ کا خواب اب ہے حقیقت. عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل. 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر. سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب. یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے. اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ. گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت. 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ. عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے. آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد. زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں. گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب. جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی. چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے. خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری. گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد. ملک بھر میں عید الفطر کا جوش و خروش، سیاسی قائدین نے دی عوام کو مبارکباد. شہر حیدرآباد میں عید الفطر کی نماز کے کثیر اجتماعات، عبادتوں کو جاری رکھنے، مساجد کو آباد رکھنے، علماء اور عامہ کی تلقین. صدر مجلس نے دی عید کی مبارکباد. حکومت وقف بل کے ذریعے وقف جائیدادوں کو تباہ کرنا چاہتی ہے، بل ناقابل قبول. صدر نشین مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا خطاب. وقف بل کے خلاف ملک کے مختلف مقامات بشمول حیدرآباد میں رضاکارانہ احتجاج. غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے تڑپ، رقت انگیز دعائیں. نفرتوں کے بیچ راجستھان کے جے پور میں ہندو بھائیوں نے نماز عید کے موقع پر نچھاور کیے پھول، عید کی دی مبارکباد. حیدرآباد آؤٹر رنگ روڈ ٹول چارجز میں فی کلومیٹر 10 پیسے کا اضافہ، ہیوی وہیکلز پر تقریباً 70 پیسے کا ہوا اضافہ. بیٹنگ ایپ کی تحقیقات کے لیے ڈی جی پی تلنگانہ کی قیادت میں 5 رکنی کمیٹی تشکیل، 90 دنوں میں رپورٹ دینے کی ہدایت. سرخیاں آپ نے دیکھی ہے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب. ملک بھر میں عید الفطر جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے. دلی کی جامع مسجد فتح پوری مسجد میں کثیر اجتماعات دیکھے گئے. اتر پردیش، مدھیہ پردیش، تمل ناڈو، کیرلا، ممبئی، اتراکھنڈ، راجستھان، گجرات، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ اور دوسرے شہروں میں بھی نماز عید خوشی و خضوع کے ساتھ ادا کی گئی. وزیر اعظم نریندر مودی، کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے، سونیا گاندھی، قائد اپوزیشن راہل گاندھی نے مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد دی.
بچے بھی بغلگیر ہو کر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے دیکھے گئے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں خاص طور پر اتر پردیش کے سنبھل میں پولیس کا وسیع تر بندوبست دیکھا گیا۔ شہر حیدرآباد میں عید الفطر روایتی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ شہر کی عیدگاہوں اور مساجد میں نماز عید کے کثیر اجتماعات دیکھے گئے۔ علماء اور ائمہ نے مسلمانوں کو رمضان کے بعد بھی عبادتوں کو جاری رکھنے، مساجد کو آباد رکھنے کی تلقین کی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے عوام کو عید کی مبارکباد دی۔ صدرنشین مسلم پرسنل بورڈ مولانا خالد سیف اللہ الرحمانی نے مسلمانوں کو وقف ترمیمی بل سے متعلق حکومت کی نیت اور عزائم سے خبردار کیا۔ وقف بل کے خلاف احتجاج بھی کیا گیا۔ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے رقت انگیز دعا کی گئی۔ پیش ہے تفصیلی رپورٹ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ماہ رمضان کا تحفہ دیا۔ اس بابرکت مہینے کی نعمتیں، فضیلتیں اور سعادتیں عطا کی۔ بندے اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کو نازل کیا اور شب قدر عطا کی۔ آج بندے اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زکوٰۃ اور فطرہ ادا کرنے کا موقع عطا کیا۔ ماہ رمضان اللہ اور بندوں کے درمیان غربت کا ذریعہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں بندے اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ رمضان اور روزے کا مقصد اللہ سے رجوع ہونا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زندگی کو رمضان جیسی بنا دو تو موت عید ہو جائے گی۔ آج فرش پر خوشیوں کا ماحول ہے۔ فضائیں اللہ رب العزت کے شکر سے معطر ہیں۔ دنیا بھر میں عید کا جشن منایا جا رہا ہے۔ شہر حیدرآباد میں عید الفطر کا سب سے بڑا اجتماع عیدگاہ میرالم میں دیکھا گیا۔ مولانا ڈاکٹر سیف اللہ نے اپنے خطاب میں مسلمانوں کو ماہ رمضان کے بعد بھی عبادتوں کو جاری رکھنے کی تلقین کی۔ مولانا نے موجودہ حالات کا بھی احاطہ کیا۔ مولانا نے مصنوعی ذہانت کے منفی اثرات سے نسلوں کو محفوظ رکھنے پر زور دیا۔ انہوں نے فلسطینیوں پر ڈھائے جا رہے مظالم کی بھی مذمت کی۔ ایک مسلمان کا کردار، اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کا طرز عمل کیسا ہو، یہ رمضان نے ہمیں سکھا دیا۔ کوئی گالی دیا تو بولے میں روزے میں ہوں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ کوئی ہاتھ اٹھانے گیا، دست درازی کرنے گیا، صبر کا مظاہرہ کر گیا۔ رمضان کے بعد بھی یہی مظاہرہ کرتا ہے۔ اسلام جو پھیلا ہے اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے۔ ایک لڑکا اپنے رشتہ دار کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا میں ہیں۔ اس وقت کا واقعہ، ایک گیا اپنے خاندان کے ایک فرد نے جا کے کہا میری ماں کے جسم کو ڈھانکنے کے لیے کپڑا چاہیے، وہ دیے بغیر دھتکار کے پڑا دیا۔ بچہ مایوس جا رہا تھا، کسی نے دیکھا، بولے کیا بات ہے، کیوں مایوس ہو، اداس کیوں ہو؟ تو اپنا قصہ سنایا اور کہا میں اپنے رشتہ دار کے پاس گیا، وہ رشتہ دار مجھے کوئی وزن نہیں دیا اور ناکام لوٹا دیا۔ تو وہ شخص کہا، ادھر اشارہ کیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہاں وہاں جاؤ، وہ آدمی کے پاس آپ کا کام بن جائے گا۔ امیر امارت ملت اسلامیہ آندھرا پردیش و تلنگانہ
मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने अपने खिताब में मुसलमानों को इस्लामी तालीमात पर अमल करने और मसाजिद को आबाद रखने की तलकीन की। मरकजी हुकूमत की मुखालिफ मुस्लिम पॉलिसियों का भी हवाला दिया। वक्फ तरमीमी बिल पर मरकजी हुकूमत की तरफ से जो मंसूबा बनाया जा रहा है उसकी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि तमाम मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक बात जहन में रखिए, ईद के माने पहले समझ जाए। ईद के माने हम लोगों को इल्म नहीं है। हम लोग ईद के माने एक दिन पहले से कह देना शुरू कर देते हैं, और फिर दूसरी तरफ जब हम मुबारकबाद दे रहे हैं तो मुबारकबाद देने से पहले ये भी देखिए कि आज हम जिस गले मिलने वाले हैं, जिस ईद को मनाने वाले हैं और जिसकी खुशियां हम मना रहे हैं, क्या आज हमारा ईमान की हिफाजत हो रही है? क्या हमारे शरीयत की हिफाजत हो रही है? क्या खुदा के बनाए हुए कानून की हिफाजत हो रही है? आज तो जिधर देखो मुसलमानों को निशाने पर लिया जा रहा है, मुसलमानों को जलील और रुसवा किया जा रहा है, मुसलमानों को नए नए मसाइल में उलझा जा रहा है, और आज हमारा नौजवान दीन से दूर होता जा रहा है और दुनिया से करीब होता जा रहा है। खतीब व इमाम मक्का मस्जिद मौलाना रिजवान कुरैशी ने नमाज ईद की इमामत की। नमाज ईद के बाद रिक़त अंगेज दुआ की गई, बिलखुसूस अहल फ़लस्तीन और गज़्ज़ा के लिए दुआ की गई। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ईदगाह मीरालम में नमाज ईद उल फितर अदा की और मुसलमानों से मुलाकात करते हुए उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि मुल्क में इंसाफ किया जाएगा। अल्लाह ताला मुसलमानों को इबादतों और उनकी ज़कात और उनके तक़वे को कबूल फरमाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से खुसूसी वॉलंटियर्स कैंप लगाया गया था। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में ईदगाह मीरालम में खुसूसी इंतजामात किए गए थे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन और मजलिस के कॉरपोरेटर्स इस मौके पर मौजूद थे। अपनी जानिब से मेरी पार्टी MIM पार्टी की जानिब से हैदराबाद की तमाम आवाम, तेलंगाना की आवाम, पूरी भारत की आवाम की जानिब से आप तमाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उम्मीद करते हैं कि हमारे मुल्क में अमन मजबूत होगा, इंसाफ सबसे किया जाएगा, और हम दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से कि जिन खुशकिस्मत मुसलमानों को अल्लाह ने तौफीक दी कि वो रमज़ान के रोज़े रखे, उसमें नमाज़ें अदा की, शब बेदारी की, तरावी की नमाज अदा की, ज़कात निकाला, अपना फ़ितरा निकाला। अल्लाह हम तमाम के इस माह मुबारक में जो गुज़रा है उसमें हमारी इबादतों को, हमारी ज़कात को और हमारी तरावी की नमाज़ों को और हमारी दुआओं को अल्लाह कबूल फ़रमाए। और उम्मीद करते कि आने वाले साल के 11 महीने भी हम इसी तरह से अपने मस्जिदों को आबाद रखेंगे, हमारे दिल को आबाद रखेंगे, हमारे ज़बानों पर अल्लाह का कलाम रहेगा, अल्लाह का ज़िक्र रहेगा, और हम अपने माशरे की बुराइयों का ख़ात्मा भी करते जाएंगे और इस मुल्क को तरक्की की राह पर लेकर जाएंगे। यहाँ पर अमन रहेगा, यहाँ पर हम मजबूती से अपने हुकूक़ की लड़ाई लड़ते आए हैं और आइन के दायरे में रहकर हम अपने तमाम हुकूक़ को हासिल करेंगे। मैं आप तमाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद की रास निगरानी में ईदगाह में नमाज ईद के लिए इंतजाम किए गए। पुलिस का वसी तर बंदोबस्त देखा गया। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने भी मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। बच्चों में चॉकलेट तकसीम किए गए। जॉइंट CP लॉ एंड ऑर्डर विक्रम सिंह मान के अलावा DCP साउथ जोन स्नेहा मेहरा और दूसरे ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। ईद उल फितर के इस मौके पर मुसलमान भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, बुज़ुर्ग, मशाइकीन सभी को पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। बहुत ही खुशी का मौका है। 30 दिन आपने रोज़ा रमज़ान के महीने में आपने किया है और इसके दौरान ये इबादत का महीना था। आप सवेरे सहरी से शुरू करके शाम में इफ्तार और उसके बाद
तरावी के प्रेयर्स के बाद और समय पर हमने पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से पूरा बंदोबस्त और इंतज़ामात हमने किया है। तारीखी मक्का मस्जिद में भी ईद का कसीर इज्तिमा देखा गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर ईदगाह मीर आलम के अलावा तारीखी मक्का मस्जिद में भी नमाज ईद के इंतजाम किए गए थे। नमाज ईद के बाद मुसलमान एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हुए देखे गए। ईदगाह उजाले शाह सईदाबाद में हजारों मुसलमानों ने खुशी खुजू के साथ नमाज ईद उल फित्र अदा की। सदरनशीन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने खिताब में मौजूदा हालात और वक्फ बिल को लेकर मरकजी हुकूमत की साजिशों से मुसलमानों को खबरदार किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने यह भी कहा कि वक्फ बिल के जरिए वक्फ की जायदादों को तबाह करने की साजिश की जा रही है। वक्फ तरमीम बिल मुसलमानों के लिए नाकाबिल कबूल है। आज ईद का दिन है, तमाम मुसलमानों के लिए खुशियों का दिन है और इस खुशी के मौके पर हमें अफसोस है कि हम एक ऐसे मौजू पर बात करना चाह रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही तशवीश का और चिंता का बाइस है, और वो है वक्फ का मसला। मुल्क भर में मुसलमानों की वक्फ की बेशुमार अमलाक हैं। मस्जिदें वक्फ हैं, मदरसे वक्फ हैं, कब्रिस्तान वक्फ हैं, ईदगाहें वक्फ हैं, दरगाहें वक्फ हैं, इमाम बारे वक्फ हैं, बहुत से यतीम खाने हैं जो वक्फ हैं, मुसाफिर खाने वक्फ हैं, ये सब वक्फ में शामिल हैं। वक्फ को नुकसान पहुँचने का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों को नुकसान पहुँचेगा। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाना ने ईदगाह उजाले शाह सईदाबाद में नमाज ईद उल फित्र अदा की। मुकामी मजलिस के कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। खदीम ईदगाह मादाना पेट में भी हजारों की तादाद में नमाज ईद उल फित्र अदा की गई। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेरात ने ईदगाह में नमाज अदा की और अवाम को मुबारकबाद दी। मजलिसी कॉरपोरेटर्स इस मौके पर मौजूद थे। ईदगाह हकीम पेट में नमाज ईद का कसीर इज्तिमा देखा गया। रुकन असम्बली कौसर मयूद्दीन ने ईदगाह में नमाज अदा की और अवाम से बगलगीर होकर उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। ईदगाह गुंबदान सात गुंबद के अलावा हल्के कारवान की मुख्तलिफ ईदगाहों और मसाजिद में ईद उल फित्र के कसीर इज्तिमा देखे गए। अवाम नमाज ईद के बाद एक दूसरे से बगलगीर होकर ईद की मुबारकबाद देते हुए नजर आए। रुकन असम्बली नामपल्ली माजिद हुसैन ने भी नमाज ईद उल फित्र अदा की। रुकन असम्बली की निगरानी में नामपल्ली की मुख्तलिफ ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद के इंतजाम किए गए थे। रुकन असम्बली ने अवाम से मुलाकात की और उन्हें ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। मजलिस के अरकान कौंसिल और कॉरपोरेटर्स ने मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज ईद उल फित्र अदा की, अवाम से मुलाकात की और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। शहर की ईदगाहों और मसाजिद के अलावा सैबराबाद और अच्छेकुंडे की मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद के बाद अहले फलस्तीन और गजा के मज़लूम अवाम के लिए रिक्कत अंगेज दुआ की गई। गजा के अवाम के लिए तड़प महसूस की गई। दुआ के दौरान कई आंखें अश्कबार देखी गईं। जिस तरह से हालिया चंद दिनों के दौरान देखा गया कि गजा पर यहूदी फौज का मुसलसल जुल्म सितम जारी है। हरमैन से लेकर हैदराबाद तक ईद के मौके पर गजा के मज़लूम अवाम के लिए दुआएं की गईं। ईद उल फित्र के पेश नज़र शहर हैदराबाद में पुलिस की तरफ से वसीतर इंतजाम देखे गए। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ ईदगाह उजाले शाह सईदाबाद के पास एहतजाज किया गया। वक्फ बिल वापस दो के नारे लगाए गए। गजा पर इसराइली जारियत के खिलाफ भी मुसलमानों ने अपना एहतजाज दर्ज किया। शहर के दूसरे मकामात पर भी रजाकाराना तौर पर खामोश एहतजाज हुआ है। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मध्य प्रदेश के भोपाल में भी मुसलमानों ने सियाह पट्टियां बांधकर एहतजाज दर्ज कराया। पुलिस की तरफ से इस मौके पर वसीतर इंतजाम किए गए थे। वक्फ बिल को लेकर मुख्तलिफ रियासतों में खामोश एहतजाज किया गया। एक तरफ मुल्क में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से अक़लियतों के खिलाफ शरंगेजी की जा रही है। ऐसे वक्त में राजस्थान के जयपुर में हिंदू भाइयों की तरफ से निज़ाम नमाज ईद के मौके के लिए जमा मुसलमानों पर फूल निछावर किए गए। हिंदू भाइयों ने मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी।
समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने कहा कि ईद की सेवइयों का मजा मुल्क के भाईचारे में महसूस होता है। लखनऊ में फिरंगी महल पहुंचकर अखिलेश यादव ने मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि उन्हें यहां पर आने से रोकने की कोशिश की गई। अखिलेश यादव का कहना था कि बीजेपी इस तरह का दबाव डालकर हमें दूसरी तकारीब में शिरकत करने से रोकना चाहती है, लेकिन यह मुल्क बीजेपी से नहीं दस्तूर से चलता है। बैनुल अक़वामी वेंगार्ड कंपनी ने हैदराबाद में अपने ऑपरेशंस में तोसी की है। वेंगार्ड हैदराबाद में अपना पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कायम करेगा। आने वाले 4 सालों में कंपनी 2300 प्रोफेशनल्स का तखर्रुज करेगी। कंपनी की तवज्जो मसनूई ज़हानत, डाटा और मोबाइल इंजीनियरिंग रहेगी। हैदराबाद का ऑफिस साल के आखिर तक काम करना शुरू करेगा। बताया जाता है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हाल ही में इस सिलसिले में वेंगार्ड के नुमाइंदों से मुलाकात की थी। तेलंगाना की हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि कंचा गच्चीबौली में वाक़ 400 एकड़ की अराज़ी हुकूमत की है और यूनिवर्सिटी हैदराबाद से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हुकूमत की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक 21 साल पहले इसे एक दूसरी कंपनी को अलॉट किया गया था, लेकिन यह अराज़ी हुकूमत की मिल्कियत है। वाज़ेह है कि इस अराज़ी को लेकर यूनिवर्सिटी के तलबा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इस अराज़ी पर अब सफाई का काम जारी है और बुलडोज़र भी देखा गया है। तेलंगाना हुकूमत ने बेटिंग ऐप की तहकीकात के लिए 5 रुकनी खुसूसी टीम तश्कील दी है। डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर जितेंद्र और सीआईडी चीफ शिखा गोयल की सरपरस्ती में ये टीम काम करेगी और टीम 90 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वाज़ेह रहे कि बेटिंग ऐप को लेकर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की कई शख्सियतों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और बाज़ सेलिब्रिटीज से पुलिस ने पूछताछ भी की है। हैदराबाद आउटर रिंग रोड पर टोल चार्जेस में इजाफा कर दिया गया है। 10 से लेकर 70 पैसे तक के दरमियान में इजाफा हुआ है और कल से उस पर अमल होगा। कार, जीप और हल्की गाड़ी पर फी किलोमीटर 2 रुपये 34 पैसे से बढ़ाकर 2 रुपये 44 पैसे टोल किया गया है। मिनी बस LSV फी किलोमीटर 3 रुपये 77 पैसे से बढ़ाकर 3 रुपये 94 पैसे कर दिए गए हैं। हेवी व्हीकल्स पर फी किलोमीटर 15 रुपये 9 पैसे से बढ़ाकर टोल चार्जेस 15 रुपये 69 पैसे कर दिए गए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है।
खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम ऑपोजिट इंडियन बैंक जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स टोली चौकी हैदराबाद। मुल्क भर में ईद उल फितर का जोश और खरोश, सियासी कायदीन ने दी अवाम को मुबारकबाद। शहर हैदराबाद में ईद उल फितर की नमाज के कसीर इज्तिमात, इबादतों को जारी रखने, मसाजिद को आबाद रखने उलमा और आमा की तलकीन। सदर मजलिस ने दी ईद की मुबारकबाद। हुकूमत वक्फ बिल के जरिए वक्फ जायदादों को तबाह करना चाहती है, बिल नाकाबिल कबूल। सदर नशीन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का खिताब। वक्फ बिल के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ मकामात बशमूल हैदराबाद में रजाकाराना एहतजाज। गजा के मजलूम मुसलमानों के लिए तड़प, रिखत अंगेज दुआएं। नफरतों के बीच राजस्थान के जयपुर में हिंदू भाइयों ने नमाज ईद के मौके पर निछावर किए फूल, ईद की दी मुबारकबाद। हैदराबाद आउटर रिंग रोड टोल चार्जेस में फी किलोमीटर 10 पैसे का इजाफा, हेवी व्हीकल्स पर तकरीबन 70 पैसे का हुआ इजाफा। बेटिंग ऐप की तहकीकात के लिए डीजीपी तेलंगाना की क़यादत में 5 रुकनी कमेटी तश्कील, 90 दिनों में रिपोर्ट देने की हिदायत। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।